So the institution's Innovation Council, Ministry of HRD initiative presents Rungta Leadership Talk Series by the Rungta Group of Institutions, Bilai Raipur. I am Dr. Jawahar Surisetti, and the series is all about stakeholders from the society who are going to talk on various aspects that affect today's India and today's world. And the address is to all the students, parents, teachers, and other attendees of this huge webinar. So today we have a very special guest. Yesterday it was very generic in nature. He was a media person. Today we have Ambassador Deepak Vora. So it's a very proud moment for us on this platform that Ambassador Deepak Vora is with us today. A rare personality who fills up the whole screen with his size. He is a giant not just by size but also by stature. So Dr. Deepak Vora is proudly, as he says, is made in India. And and he is the special advisor to the prime ministers of Lesotho, South Sudan, and Guinea-Bissau, and to Ladakh Autonomous Hill Development Councils, Leh and Kargil. And he has served as ambassador of India to Armenia, Georgia, Sudan, South Sudan, Poland, and Lithuania. Not just that, he is a multifaceted personality. When you speak to him, all of us will need to keep quiet, otherwise we'll be drowned. That risk remains with us. He is a quiz master. He is a anchor for Doordarshan, and maybe one of the first few anchors of Doordarshan who had such a mass base. And there is so much to tell about him, but I think what we will need to do is that we will need to engage with him and take out the best from him in the 1 hour that we have. He makes a presentation right away, and the presentation is known as Mega Trends for Mega Changes. And this is what is the most important thing today. Anything that you hear today from a person of his stature has to be taken in with 100% concentration, attention, especially for students, because he is very youthful in his talks. So don't be fooled by the gray hair that you see on the screen, because he is as black or burgundy or whatever color that you choose than any of us. So over to Dr. Deepak Vora. Vande Mataram. Vande Mataram. Thank you very much, Jawahar Surisetti. I trust you can hear me. Yes, definitely. Thank you. And delighted to be once again with one of the finest educational groups in the country, the Rungta Group. Dr. Saurabh Rungta, Dr. Sonal Rungta, and Daddy Rungta. If you're listening to me, I give you my greetings. Thank you for your gracious introduction, Dr. Jawahar Surisetti. You forgot to mention one thing that I'm very proud of. When I was at the height of my television career, I even acted in 2 commercial films. Both, of course, were super flops. So I'm not mentioning that, even though a women's magazine had listed me as one of the most sensational personalities in India. I keep reminding my wife about that. She says they told a lie. That was 43 years ago, when we got married 43 years ago. In the next 25 to 30 minutes, if you give me your attention, we are going to talk about the changes that we are seeing globally as well as in India, and where we are headed in the next 10 years. Because the pace of change today is much faster than it has been at any time in human history. And the knowledge that we have gathered in the last 50 years has been more than the knowledge that the world gained in the preceding 5,000 years. So I'm beginning my slideshow. If there's any difficulty, Dr. Surisetti, just let me know. May I start then? Yes. First, you saw the first slide and you were able to hear the music too. Am I correct, sir? No. Okay. Then let me go back to this. I'm going to stop sharing for a moment and then I'll start sharing again so that you are able to listen. Is that all right with you? Because I would like you to listen to the sound. And let me see how I stop sharing. Now, this is always
an issue that I face with. Yes, now we are okay. And now I'm sharing. Are you able to see the slide now? No. I've started sharing. What's happened? All right, this must be some Chinese equipment. That's trouble. All right, I'm sharing now, and I'm including the audio, and let's see what happens. I think you should be. Are you able to see the slide now? Yes, very close. Yes, So here we go perfect. with the slideshow. Music too? Dr. Suriseti? Yes, yes. Okay. So, ladies and gentlemen, thank you very much. Now, take a look at what's happening in the Chinese virus, which they unleashed on the world late last year, early this year. The West, the so-called Great West, they don't know क्या हो रहा है, क्या पिटाई हो रही है. Or China is falling into the Caligula trap. I'll just fill you in on what I mean by the Caligula trap. It's my term. Please don't use it without attributing it to me. Caligula was a Roman emperor 2,200 years ago, the same family as Julius Caesar. In the first 6 months of his reign, he was a delightful character. After that, he became very cruel. He had this habit of boiling his enemies and eating them up. And when his courtiers came to him and said, Caligula साहब, शहंशाह, ये क्या कर रहे हो? आप तो बहुत ही कठोर आदमी हो. His answer was, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. सारी दुनिया मुझसे नफरत करे, लेकिन ये जरूरी है मुझसे डरें. Let them hate me as long as they are frightened of me. China इधर फंस चुका है, गिर चुका है. उसने अपनी ताकत दिखाई है चोट लगाने की. It is giving you an example of its power to hurt. India is showing you the power of its example to heal. और हमारे जो एक बहुत बड़े विद्वान थे आज से 2200 साल पहले, चाणक्य, उन्होंने क्या कहा था? जब बीमारी होती है तो केवल आपका दोस्त आपके साथ होता है. Are you able to hear me still? Yes. All right. Now the sounds have gone away. It doesn't matter. We'll bring them back. अब चार चीजें हैं about this Chinese virus attack. पहला तो आपका response इतना जबरदस्त रहा है. We have one of the lowest rates of mortality per million. ये तो आप जानते हैं. Do you know we've helped 130 countries, including some of the richest? और वो जो आपका अमेरिका का राष्ट्रपति है वो क्या बोलता है? We shall never forget India's help. India has been great. देखिए, डोनाल्ड ट्रंप से आप मोहब्बत करें, नफरत करें, जो भी कहें, we have been helping some of the richest countries in the world, giving them our medicine. 100 से ज्यादा देश, जब ये चाइनीज वायरस आया था, डॉक्टर सूरिसेटी, more than 100 countries went to the IMF. They went to the World Bank, they went to donors, हाथ फैला दिए कि हमें मदद करो. आपका देश भारत नहीं गया, दूसरे देशों की मदद कर रहा है. और आपका जो ये वंदे मातरम, वंदे भारत जो आपका प्रोग्राम था, वह मदर इंडिया, हम भारत को माँ कहते हैं कि नहीं डॉक्टर सूरिसेटी? और जब बच्चे मुश्किल में होती है, माँ तो भगवान से भिड़ जाती है. सो माँ, भारत माँ has reached out to over 5 lakh of its children in 140 countries. We are bringing them back. और जब आपके पायलट्स पाकिस्तान के ऊपर फ्लाई करते हैं तो पाकिस्तानी ATC कहता है we are proud of you. You know, when India's success, ये पूरी दुनिया देख रही है, तो जो वेस्टर्न मीडिया है ना, जो ये मानते नहीं है, जो कहते थे भारत तो गरीब देश है, कुछ नहीं कर सकता, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो पागल हो जाते हैं. एंड देन दे गेट ऑल योर सो कॉल्ड लोकल एक्सपर्ट जो चमचे हैं वेस्टर्न मीडिया के, देन दे से अरे भारत का हेल्थ सिस्टम खराब हो जाएगा और करोड़ों जो माइग्रेंट्स है वो सड़कों पे मर रहे हैं. मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एक भी नहीं मरा है. एंड नाउ वी हैव एक्सटेंडेड फ्री फूड फॉर देम टिल द एंड ऑफ नवंबर. और जल रहे हैं जो भारत के दुश्मन है देश के अंदर और देश के बाहर, कि ये गरीब देश, हाउ इज इट गिविंग एन एग्जांपल टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इतना ही आपको कहना चाहता हूं. एक्सेसिव पेसिमिज्म, निराशावाद, वो आपको ताकतवर नहीं बनाता है, वो आपको अंदर से खोखला कर देता है. यू बिगिन टू फील होपलेस एंड हेल्पलेस. किसी भी कॉलोनियल पावर की पहली चाल ये रहती है कि आपका जो आत्मशक्ति है, विल पावर, आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसको तोड़े. Look, I'm going to talk about India. I was made in India in 1951. जब मेरा जन्म हुआ था, भारत में दरिद्रता, एक्सट्रीम पॉवर्टी 92%, 92%, मैस इलिटरेसी 90%, केवल 10% भारतवासी कभी स्कूल में गए थे. सप्रेशन ऑफ वुमेन,
जानते हैं कि 2% हमारी मदर्स, वाइव्स, डॉटर्स, सिस्टर्स वर इन द फॉर्मल वर्कफोर्स, 2%। एंड देन सेल्फ कॉन्फिडेंस, अरे ये तो हमारा नसीब है, ये तो हमारी किस्मत है। ये सब मैंने देखा है अपनी जिंदगी में। जब भी समस्या होती थी हम विदेशियों के पास भागते थे कि हमारी मदद करो। बाय द टाइम आई डाई, इंडिया वुड हैव एलिमिनेटेड इलिटरेसी एंड पॉवर्टी। जेंडर इक्वालिटी में हम बहुत आगे निकल चुके होंगे। वी वुड हैव बिकम सेल्फ कॉन्फिडेंट, क्योंकि मैं परिवर्तन देख रहा हूं। देखिए ये जो समय था ना 1950 से 1980s, these were the years of uncertainty, जब हम we used to feel helpless, हमारी सेल्फ एस्टीम खत्म हो गई थी। I, क्या था इन्फ्लेशन was running at 25, 30, 35%. We had very low growth, 1-1.5%। लोग कहते थे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या बढ़ती जा रही थी। We had wars, 47 में तो पाकिस्तान से लड़े, उसके बाद 62, 65, 71। There's a very, very bad time. We had insurgencies, नॉर्थ ईस्ट में, पंजाब में, कश्मीर में। एक टाइम में तो तमिलनाडु भी अलग होना चाहता था। Our best and brightest people like Dr. Jawahar Surisetti and his children, they left, they went to the west। उसको हम ब्रेन ड्रेन कहा करते थे। We had political instability, आया राम गया राम कहते थे, आज इस पार्टी में है, कल उस पार्टी में है। और 55 साल से दुनिया से मदद लेकर हमारी आदतें बिगड़ चुकी थी। Foreign exchange crisis we had, currency devaluation, communal violence, political assassinations। बेटा हमने सब कुछ देखा है, मैंने देखा है अपनी जिंदगी में। और कोई भी चीज विदेश में बनी होती थी हम बड़े खुश होते थे अगर कोई मेरे लिए ले आए उस चीज को। लेकिन फिर 1990 के बाद क्या हुआ? We see India's comprehensive राष्ट्रीय ताकत। You know, in the 1990s, the IT prowess, and we used to joke, अगर सरकार को पता होता कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भारत इतना आगे बढ़ रहा है तो सरकार एक मिनिस्ट्री बना दी थी उसे कंट्रोल करने के लिए, और वो ठप हो जाता। Indian companies began to acquire assets, a proudest moment in my life, जब टाटा ने जैगुआर को खरीदा, जब एयरटेल ने जेन को खरीदा। स्पेस टेक्नोलॉजी तो आप जानते हैं क्या माहिर, कितनी महारत है हमारी। 104 सैटेलाइट्स, वी लॉन्च्ड इट फ्रॉम अ सिंगल रॉकेट। इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। आप लोग पूछेंगे कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है, बट हाउ डू यू प्रिवेंट दोज 104 सैटेलाइट्स फ्रॉम कोलाइडिंग विद ईच अदर? ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया में ये कोई कर नहीं पाया है, और मुझे नहीं लगता कई सालों के लिए कोई कर पाएगा। 1999 we took the last loan from the International Monetary Fund, जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है। आखिरी बार हमने उनसे मदद ली थी 1999 में। कारगिल में 99 में आपने देखा किस तरह से हमने टक्कर ली, हाउ वी फॉट बैक। 2003 के बाद हमने ये फैसला किया कि हम अब किसी विदेश से, किसी दूसरे, there's some noise in the background, somebody please stop, thank you, now could you switch off? You are muted. Can you hear me now? Yeah. Are you able to see the slide on India's comprehensive national spirit? So IT prowess का आपने सुना, where did you go? 2003 में जैसे मैं आपको बता रहा था, we said goodbye to foreign aid। क्यों कहा हमने ये? क्योंकि पिस्सू से देश डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे हमें आके भाषण देते थे ऑन ह्यूमन राइट्स कि आपने न्यूक्लियर टेस्ट किए, मत करो। हमने कहा मेरे चाचा अब तुम्हारी मदद हमको नहीं चाहिए। हमने पार्लियामेंट में, आपके भूतपूर्व राष्ट्रपति जब फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर प्रणब मुखर्जी बोले ब्रिटिश सरकार को कि भाई आप अपनी मदद अपने पास रखो, इट इज पीनट्स। ब्रिटिश पार्लियामेंट की डिबेट्स पढ़ो, वो तो आग बबूला हो गए कि ये काला आदमी, तेरी इतनी मजाल की तू मुझसे मदद नहीं लेगा। हमने कहा मेरे चाचा तेरी मदद की हमें जरूरत नहीं है, किसी और को दे। 2003 की ये बात है। 2004 हमने एक बहुत गंदा काम किया। हमने सारी दुनिया को बता दिया कि नेचुरल डिजास्टर होगा, वी विल हैंडल इट आवरसेल्व्स। और जो इंटरनेशनल एनजीओज हैं वो बड़े बिगड़ गए कि हमारा तो धंधा चौपट कर दिया आपने, हम तो पूरी दुनिया से पैसे लेते थे आपकी मदद करने में। वाई 2004 डॉक्टर सूरीसेट्टी, यू रिमेंबर सुनामी आई थी, मैं उस समय आपका राजदूत था आर्मीनिया में। तो एक अंतरराष्ट्रीय एनजीओ हमारे पास आया, बोला कि हम जाना चाहते हैं टू हेल्प। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं वीजा दे देता हूँ। हाँ जी, वहां पे क्या होगा? मैंने कहा कुछ नहीं, आप जाइए वेयर द सुनामी इज इन अंडमान निकोबार, आप बीच पे सो जाइएगा। आपके लिए किसी के पास टाइम नहीं है आपका ध्यान रखने के लिए। बाढ़ आएगी, आप मर जाएंगे, आपके शव मिल गए, चाहे आपको कॉफिन में डाल के वापस आपके परिवार को भेज देंगे। जानते हो कितने लोग आए थे मदद करने के लिए? 0।
क्योंकि हमने कहा अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू स्पेंड आवर टाइम। सर, आपको याद होगा कि बहुत जबरदस्त भुज में अर्थक्वेक आया था इन 2001। आई वाज इन स्पेन एट दैट टाइम। तो स्पेनिश सरकार ने एक डॉग स्क्वाड, यू नो द डॉग स्क्वाड जो सूंघते हैं और लोगों को ढूंढते हैं, तो वो लोग वहां चले गए थे। जनवरी 2001 में ये भूकंप आया था। तो डीसी जो वहां के थे, डिप्टी कमिश्नर, उन्होंने मुझे फोन किया, मैं स्पेन में था। कहने लगे सर ये आपने क्या कर दिया? मैंने कहा भाई भेजे तुम्हारी मदद के लिए। कहता है 3 दिन से मैं तो कुत्तों का भोजन ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर डॉग फूड। मैं कुत्तों का भोजन ढूंढूं या लोगों को बचाऊं? सो वी टुक दिस डिसीजन कि अब नहीं हमको चाहिए। देन एज यू नो लास्ट ईयर वी शोड द पाकिस्तानीज व्हाट वी कैन डू। For the first time since 1947, since 65, we crossed into Pakistan. We hit them in their own territory. That was something amazing. Recognize the status of Kashmir. आज दुनिया हमें कहती है कि जी आपकी एनर्जी में, ऊर्जा में बहुत समस्या है। अरे मेरे चाचा, 1/3 of my energy mix is already 1/3 is new and renewable energy. जो पहली तेज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति हुई थी ना, which was in 1750, 1850, उसके बाद early 20th century. We missed it. We were a colony. लेकिन अब जो चौथी औद्योगिक क्रांति हो रही है, which is called the artificial intelligence, I call it engineered intelligence revolution. The fourth center for the fourth industrial revolution, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहाँ बनाया? पहला अमेरिका, दूसरा जापान, तीसरा चाइना, चौथा भारत में बनाया है। आप लोग कहते हैं कि पीपल्स मूवमेंट कोई नहीं करेगा भारत में। स्वच्छ भारत में हमने क्या किया था? It was a people's movement. We had more than half the population. 5 years before the present Prime Minister launched the movement, 60% of India, 60%, Dr. Suryasethi, used to go into the fields, into the rivers, into the ponds. सुबेरे जो कुछ करना होता है वो करने के लिए। आज कौन जाता है? Everybody has access to a private or a public toilet. We have shown what we are capable of. You know, we disappoint all those जो कहते हैं ना कि भारत खत्म होने वाला है, because we exceed every expectation of everybody every time. ये भारत का संकल्प है। अरे दिखा देंगे तुझको। जून पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप कहता है G7, the group of the world's richest liberal economies, liberal democracies, वो कहता है वो आउटडेटेड है। अब रूस को, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत को उसके अंदर लाओ। मैं कुछ नहीं कहूंगा, थिंक अबाउट इट। क्यों चाहता है कि भारत उसमें आए? आपका चाचा लगता है वो? साउंड आपको सुनाई नहीं दिया होगा। इट सेज बिकॉज़ द सिस्टम ऑडियो was facing difficulty. Anyway, ये किताब है, this is written by my colleague, American diplomat, 2 साल पहले विमोचन। Our time has come. पढ़िए, how India is making its place in the world. इसका क्या मतलब है? भारत किस तरह से अपनी जगह बना रहा है दुनिया में। आज पूरी दुनिया भारत के साथ दोस्ती क्यों करना चाहती है? चाइना के साथ जो इस समय हमारा समस्या चल रही है, चाइना की समस्या सारे पड़ोसियों के साथ चाइना सी में। और आज जो न्यूज आई है, डोंट डिसमिस इट, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने, उनके जो प्रधानमंत्री है, क्या नाम है उसका सर, मैं भूल जाता हूँ, क्या नियाजी है ना उसका नाम, इमरान। हाँ, इमरान खान नियाजी। उसको फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि भाई तू चीन के साथ ये जो वो करके उनको जो टुकड़े फेंकते हैं खाता है, पूरी दुनिया कह रही है कि ये चीन के साथ हम, वी डोंट लाइक चाइना एंड देयरफॉर वी डोंट लाइक पाकिस्तान, अब थोड़ा सा दूर हो जा। दिस वाज यस्टरडे, देयर फॉरेन मिनिस्ट्री हैज सेंट अ मैसेज। एक मजेदार चीज बताऊं, डॉक्टर जवाहर सरीसेठी, डॉक्टर रुंगटा, यू विल रिमेंबर 1971 व्हेन दे सरेंडर्ड टू द इंडियन आर्मी, the Pakistani commander was a chap called Amir Abdullah Khan Niazi. He surrendered to the Indian Army in 71. And last year, a fellow called Imran Khan Niazi has surrendered to the Pakistan Army. क्या देश! अब देखिएगा, ये मैंने नहीं बनाया, ये कार्टून था इन द इकोनॉमिस्ट। ये उस समय के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरॉन आए थे भारत और झुके हुए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री थे और मिसेस गांधी के सामने झुक के कह रहे हैं मुझे कोई पैसे दे दो, मेरा देश बड़ा गरीब है। ये देखिए, इन्वेस्ट इन बवारिया। बवारिया तो आप जानते हैं कि जर्मनी में है। भाई जब मैं फॉरेन सर्विस में भर्ती हुआ था लेटर इन द 90s, हमें क्या गया कि दूसरे देशों से इन्वेस्टमेंट भारत में लाओ। और अब ये देखिएगा जरा सर, जर्मनी कह रहा है, भारत में इश्तेहार डालता है इन इंडियन मैगजीन कि आप इन्वेस्ट करो मेरे देश जर्मनी में। ये देखिए, लंदन में एक प्रॉपर्टी, इंडिया टुडे में ये छपी थी 2015 में। मैं तो ऑब्जर्व एनालिस्ट हूं, मैं समझने की कोशिश करता हूं। अरे भारत में लंदन की प्रॉपर्टी का क्यों इश्तेहार दे रहे हो? वो इश्तेहार इसलिए दे रहे हैं बिकॉज दे नो दैट इंडिया हैज द पॉसिबिलिटी, द मनी टू बाय प्रॉपर्टी। और शायद वो मलाई वाला जो भाग गया है ना, ही मे हैव अ प्रॉपर्टी ओवर हियर, दे नो वी हैव द फाइनेंशियल कैपेबिलिटी।
देखिए, डेवलपमेंट के लिए आपको 5 चीजें चाहिए हैं। आपको डिसाइसिव लीडरशिप चाहिए, यंग पॉपुलेशन जो हमारी है, यू नीड एजुकेशन, यू नीड विमेन्स एम्पावरमेंट और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। ये पहली बार, अभी एक स्लाइड देखेंगे, मानव इतिहास में पहली बार हो रहा है कि ये पांचों चीजें मिलके इकट्ठी होके भारत में आ रही हैं। पहली चीज, डेमोग्राफीज बदल रही हैं, भारत जवान हो रहा है। क्यों? फ्रेंच हिस्टोरियन सब मुझे पढ़ाया था इन यूनिवर्सिटी ऑफ सॉर्बोन जब मैं पढ़ता था इन 76-77, तो उन्होंने एक बार कहा था कि यूरोप बहुत जल्दी ओल्ड सोसाइटी, बूढ़ा समाज हो जाएगा, बूढ़े लोगों का, बूढ़े घरों में रहेंगे और बूढ़े आइडियाज डिस्कस करेंगे। पिछले 30 साल में कोई भी नया आविष्कार यूरोप से नहीं आया। पोप ने 2014 में कहा था यूरोप अब बुढ़ा महाद्वीप बन गया है, और जर्मन फॉरेन मिनिस्टर, मैंने नहीं कहा, उसने कहा था 2016 में कि पश्चिमी दुनिया जैसे हम जानते हैं वो हमारी आंखों के सामने गायब हो जाएगी। अब मैं आपको डेमोग्राफी का बताता हूं, जरा ये स्लाइड देख रहे हैं डॉक्टर सूरी सेठी? डॉक्टर सूरी सेठी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आर यू एबल टू सी दिस स्लाइड? No. यू आर नॉट एबल टू सी? No. Oh, what's happened now? Sir, the first slide is available, is visible. The flag is visible. उसके बाद कुछ नहीं आया? नहीं. Okay, let me try this again. Okay, ये slide नजर नहीं आ रही डेमोग्राफीज की? No, sir. नहीं. Okay, so what do I do? Please tell me. We have a little interruption here. F5 दबाइए सर. F5 दबा दिया। और उस राइट एरो अगर आप दबाएंगे शायद आ जाएगा। राइट एरो कोई है नहीं ना इसके अंदर? आपके कंप्यूटर पे होगा ना? राइट साइड का एरो गोइंग अप और गोइंग डाउन? नहीं, राइट साइड जा रहा है। ओके, लेट मी सी क्या हो सकता है। देयर इज एन एरर अगेन, द सिस्टम sharing system audio pause. Okay, let me stop sharing and then I'll come back. Sorry about that, gentlemen. Sorry. Let me start sharing again because I want you to see these slides. I thought you had seen all this, so we probably, this is the trouble with this Chinese software that we use. Okay, let me see. अब आपको पहली स्लाइड नजर आ रही है कि नहीं सर? नहीं. No. What should I do? Hold on. Are you able to see the first slide? Yes. All right, the second one? Yes, now I am able to see. Yes. ये वो किताब है जो मैंने आपको बताई थी, which is by my colleague Alisa Iris. Our time has come, how India is making its place in the world. I just referred to it. और ये मैं आपको बता दूं that this book is a bestseller in Pakistan. Now we are going to go to the next slide. ये फिर से हैंग कर रहा है यार, ये चीनी माल जो है ना मेरा कंप्यूटर, ये ठीक नहीं है. Okay, there we are. Now let me do from the current slide. ये तस्वीर आप देख रहे हैं अब? Can you see the slide? Yes. Okay, this is David Cameron, which I mentioned with Dr. Manmohan Singh. भीख मांग रहे हैं उनसे. ये जर्मनी का एक अखबार भारत में, जर्मनी का एक स्टेट बवारिया भारत में इन्वेस्ट करने एक इश्तिहार देता है, इन्वेस्ट इन बवारिया. Can you see this, sir? Yeah, we can see. This is the mention. India Today का एक इश्तिहार है in London. London property का भारत में, because they want Indians to buy property over there. Just look at it. They know we have the money. Essential development के लिए, विकास के लिए, leadership, young population, education, women's empowerment, economic opportunity. ये मैंने आपको पहले बताया था. अल्फ्रेड सोवी जो मेरे टीचर थे, उन्होंने बताया था when I was at the Sorbonne कि यूरोप बुढ़ा समाज है, बुढ़े लोगों का, बुढ़े घरों में रहते हैं, बुढ़े आइडियाज डिस्कस करते हैं. 30 साल में यूरोप से कोई नया आइडिया आविष्कार नहीं आया. जर्मन फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा था कि पश्चिमी देश जो है, दुनिया जो है खत्म हो रही है, और पोप ने, मैंने नहीं कहा, यूरोप के बारे में कहा था, अरे आप तो बुढ़े हो चुके हो. Now this is the demographic window of opportunity. आप देख रहे हैं डॉक्टर सूरी सेठी? Can you see the slide? No. What is happening? ये कोई इसमें इंटरफियर कर रहा है क्या? You can't see the slide at all? I don't think. No. I can see a slide, the past one. The French historian, demographies are changing. ये वाली? Which No, one? ties that no longer bind. Manmohan Singh and Sonia Gandhi sitting there. Okay, then before that, if you don't see the slides, ये वाली देख रहे हैं? नहीं. This is the one with Manmohan Singh and. Yes. This is the one we are seeing now.
Now, can you see the next one? Let me try. Can you see this? No, it has Okay. not moved. Okay, then let me try. I'll stop sharing. I'll start sharing again. Nothing I can do, these terrible fellows. Let's try some other system. Something is being shared and anything you share will replace it. Yes, include audio sharing. Here is the slideshow now. Are you able to see this? Yes. Invest in Bavaria. It's loading. It will come. Okay, can you see that now? No, not yet. All right, I'll wait. Yes. Invest in Bavaria. Do you see this one about property in London, the mansion? Yes. Then you see this about demographies, जो हमने आपको बताया था. Can you see this slide? Demographies are changing. No. Next. कौन सी ये नहीं देख रहे? Demographies are changing. नहीं. Mansion दिख रहा है अभी. The mansion. I'll have to get. Sorry guys, I have to get off this. I'll stop sharing. Start sharing. Boy, oh boy, this is great fun. All right. Let me try again. I've started sharing. Now tell me, are you able to see the... I'm sharing now. Yes. Are you able to see the slide? It will come. There is a lag. It will come. Can you see now? No. Nothing? No. Share again. Okay. All right, I'll try again. Do you think this is the Chinese who are doing it? They don't like me. Made in India. Okay, now, are you able to see a slide? No, nothing. Abhi? हाँ. आ गई एक slide? हाँ, slide आ रही है. एक मिनट बताता हूँ कौन सी आ रही है. जी. हाँ, yes, demographic transition. Okay, now take a look. Let's finish this as quickly as you can. Median age का मतलब होता है कि आधी जनसंख्या उससे कम है, आधी जनसंख्या उससे ज्यादा है. The median age in India, you see it in red, is 28 years, which means 65 crore Indians like me are less than 28 and 65 crore like Dr. Suri Sethi are more than 28 years, right? Take a look at Brazil, 32, China, 37, बुढ़े हो रहे हैं. Russia is 40, Japan is 47, Dr. Suri Sethi. वो बच्चे पैदा करने भूल गए हैं, हम बता देंगे, हमारे पास टेक्नोलॉजी है. We may not be a productive society, we are a reproductive society. Demographic window of opportunity होती है जब आपकी maximum population हो between the ages of 15 and 65. देखिए आपकी उम्र अगर 15 साल से कम है तो आपकी consumption ज़्यादा है, आपकी production कम है. 65 and above फिर से आपकी consumption ज़्यादा है, production कम है. So we are now looking at it, Western Europe, 44. That is why the Pope called it an elderly and haggard continent. और अब क्या हो रहा है? 1 out of 4 Europeans is above 60. 1 out of 3 Japanese is above 60. 1 out of 10 Indians is above 60. We are the world's youngest country. Can you see this slide, Dr. Suri Sethi? Yeah. We have 100 crore people in the productive age group. यूरोप थक गया है, अमेरिका उसको इग्नोर करता है और ब्रिटेन तो वहां से भाग गया है. कैन यू सी द नेक्स्ट स्लाइड? No, not yet. Yes. Focuses. Education, can you see that, sir? Yes. Right. आप महाभारत तो जानते हैं, उसमें जो 5 पांडव भाई हैं, बहुत प्यास लगती है, वन में होते हैं जब उनका वनवास होता है और 4 भाई जाके पानी पीते हैं तालाब से. यक्ष स्पिरिट का जवाब नहीं देते उसके सवाल का और उस समय गिर पड़ते हैं. तो युधिष्ठिर आता है, यक्ष उससे पूछता है कि बताइए इंसान की सबसे वैल्यूएबल पोजेशन क्या है, और युधिष्ठिर कहता है साक्षरता, एजुकेशन. सुन लीजिएगा मम्मी डैडी लोग, 10,000 साल पहले भारत पढ़ाई की बात करता था जब ये गोरे नंगे घूम रहे थे जंगलों के अंदर. आज 50,000 यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं. जब मेरा जन्म हुआ था, आविष्कार हुआ था, भारत में 500 थी. और वन ऑफ द बेस्ट ऑफ कोर्स इज द रुंगटा ग्रुप. आज हमारे 15 लाख स्कूल हैं. कितने हैं डॉक्टर जवाहर सूरी सेठी? 15 लाख. 15 लाख. हमारे 34 करोड़ विद्यार्थी हैं और आधे से थोड़ा सा ज्यादा हमारी बेटियां हैं. अरे मुझे जेंडर इक्वालिटी के बारे में बताते हो, वेट टिल आवर डॉटर्स कम इनटू द वर्कफोर्स, फिर मैं पूछूंगा टाइगर
कि आप बताओ जेंडर इक्वालिटी के बारे में। 10% साक्षरता नहीं थी in 47, today it's over 80%. Can you hear me? Yes, yes. And it will be 100% by 2022. नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं आपको। बराक ओबामा 3 बार क्यों आता है भाई भारत में? आके जाके अमेरिकियों को कहता है कि you've got billions of people from Bangalore, जो दिन रात अमेरिकी बच्चों को कहता है who are working day and night to out educate and out compete, जो 3 बार आता है भारत। इकोनॉमिक पावर, ये स्लाइड देख रहे हैं आप डॉक्टर सूरी सेठी? हाँ, दिख रहा है। देख रही है, दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बिफोर द वायरस in purchasing power parity terms. China 27 trillion, USA 21, India 12, Japan 5.5 trillion. देख रहे हैं आप इसको? अरे ये चीज देखिएगा, आपकी टोटल प्राइवेट वेल्थ कितनी है भाई? 8.2 ट्रिलियन डॉलर्स, द 6th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। फिर कहते हैं गरीब देश है। और वर्ल्ड डेटा लैब, ये मेरे फिगर्स नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक के, IMF के हैं, UN के हैं, दैट लेस देन 3% इंडियंस टुडे लिव इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, व्हिच इज लेस देन $1.90, व्हिच मींस लेस देन अबाउट 130 रुपीस पर डे। ये मैंने नहीं कहा, दिस इज द वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक। And where are we spending this money? ये मैं पूछना चाहता हूँ। Can you see this, Dr. Suri Sethi? Yes, yes, yes. All right. Where are we spending this money? We are spending it on looking better. ओए, Dr. Suri Sethi, ब्यूटी पार्लर में जाते हो कि नहीं? सच बताओ। आपकी मैम साहब जाती है कि नहीं? हाँ, जाती होंगी। We are spending money on new clothes, beauty. You know, हमारे देश में 6.5 लाख गांव और शहर हैं और हमारे पास 1.5 करोड़ ब्यूटी पार्लर्स हैं। Then we are looking on eating better. वो क्या है? वो Swiggy, Piggy, Zomato, Tomato, सब। That's not eating better, but we are spending a lot of money. और अब तो वायरस, चाइनीज वायरस के करके और भी हो रहा है। We are living better, better homes. ट्रैवलिंग बेटर। लास्ट ईयर हमने 200 करोड़, 130 करोड़ भारतवासियों ने 200 करोड़ विजिट किए थे आउटसाइड देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस। डजंट मीन दैट एवरीबॉडी ट्रैवल, बट जिन्होंने 10-15 विजिट किए मिला के 200 करोड़। 160 करोड़ मोबाइल कनेक्शंस हैं मेरे दोस्त, 160 करोड़, और 100 करोड़ स्मार्टफोन्स हैं। बल्ले बल्ले। एंड देन ऑफ कोर्स वी आर स्पेंडिंग ऑन हेल्थ, वी आर स्पेंडिंग ऑन क्लब्स एटसेट्रा एटसेट्रा। Of world militaries, I'll show you the second thing. Can you hear me, sir? Yes, yes, very clear. World militaries का slide देख रहे हैं? दिख रहा है। देख लीजिएगा। Based on numbers, based on weaponry, based on technology, USA first, Russia first. वो कहते हैं China is third. I don't believe it. We are third. Let's move on. And global challenges, climate change, declining food production, water stress, बहुत बुरी हालत है। Then terrorism, the global terrorism index है, वो कहते हैं of 163 countries that they surveyed, which is 99.7% of the world population last year, 120 में terrorist attack हुए, and top 5 nations facing terrorism are all Islamic। ये जो pandemic है ना, Chinese virus, अब swine flu की बात हो रही है, it is only a matter of time before the Chinese unleash one more virus on the world। तो ये सब जो टेक्टोनिक चेंजेस हो रही हैं डॉक्टर सूरी सेठी, कैन यू सी द स्लाइड? यस, यस। इसका मतलब क्या है? 15% दुनिया की जनसंख्या विच रूल्ड ओवर द अदर 85% 200 साल के लिए आज बौखला गए हैं सर। उनकी प्रिविलेज लाइफस्टाइल्स जा रही हैं और वो बस अफसाना, फैंटेसी में हैं। बट पैसे खत्म हो गए, ताकत खत्म हो गई, उनकी अक्कड़ खत्म नहीं हुई, घमंड अभी खत्म नहीं हुआ। बोरिस जॉनसन क्या कहता है? वी वंस रैन एन एम्पायर, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर। तो कहता है कि हम लोग ब्रेक्सिट को सरवाइव करेंगे। कहता है अफ्रीका की ये समस्या नहीं है कि हम एक टाइम इंचार्ज थे ब्रिटेन, अफ्रीका की समस्या है कि अब ब्रिटेन इंचार्ज नहीं है। घमंड देखो, उस गाली क्या दूं उसको, उस व्यक्ति की। और फ्रांस का प्रेसिडेंट कहता है 2 साल पहले कि अफ्रीका में एक सिविलाइजेशनल प्रॉब्लम है, बहुत बच्चे पैदा करते हैं। अगर तुम खुद भूल गए हो बच्चे पैदा करने, जाके अफ्रीका से सीख लो। लुक एट द एरोगेंस। तो इसका रिजल्ट क्या है? आर यू एबल टू सी दिस स्लाइड डॉक्टर सूरी सेठी? यस, यस, यस। डिस्ट्रक्शन, डिप्रेशन। जानते हो नंबर 1 डिजीज इन द वेस्टर्न कंट्रीज इज डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब आप जानते हो, अकेलापन। ब्रिटेन कहता है कि हमारे पास 90 लाख 9 मिलियन लोग हैं, एल्डरली पीपल हु आर डिप्रेस्ड। तो वो ट्रेनिंग दे रहे हैं
to younger people कभी जाके companionship दो उनको, and mainly the majority of these people who are depressed are rich old widows. तो मैंने भी फोटो भेजी, भाई मुझे भी ट्रेनिंग दो, इनके पास तो बहुत पैसा है, मैं भी चाहता हूँ. तो उन्होंने जवाब दिया, yes they are lonely but they are not that lonely. आपकी जरूरत नहीं है. Deloitte ने एक एटीट्यूड सर्वे किया था, हर साल करते हैं, and this is for my children, for the sons and daughters of India. उन्होंने ये बताया था, they did a survey of millennials. Millennials का मतलब जिनका 1975 के बाद जन्म हुआ, and Gen Next, जिसे आप Gen Z कहते हैं, post millennial, जिनका 1995 के बाद जन्म हुआ. 42 countries, 16,000, और उसमें बताया गया Indians are the most optimistic and positive. सबसे बॉटम नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सबसे टॉप के आपका मेरा देश भारत. और उनसे पूछा गया भारतीय बच्चों से, क्या चाहते हो, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, खूबसूरत फैमिली एटसेट्रा. बोले सब कुछ वो, लेकिन नंबर वन प्रायोरिटी टू गिव बैक टू सोसाइटी. आई सैल्यूट द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया. क्या विचार हैं आपके. और गोल्डमैन सैक्स, मैं नहीं कह रहा, गोल्डमैन सैक्स क्या कह रहा है कि India's future will be shaped by 48 crore Gen Next born after 1995. The sheer strength of India's youth, combined with improved education and sustained purchasing power, भारत की कहानी अगले 20 साल के लिए दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कहानी होगी. मैं नहीं कह रहा. This is what Goldman Sachs has said. Deloitte has said. अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, राइजिंग रिस्पेक्ट फॉर इंडिया ग्लोबली. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जस्ट टेक अ लुक. यू नो व्हाट इज द रिस्पेक्ट फॉर इंडिया ग्लोबली. ओके, हियर इट इज. लेट मी फिल यू इन ऑन दिस. ये स्लाइड जो हमने की है. 2015 येमेन इवैक्यूएशन हुआ. आपको याद है डॉक्टर सूर्यसेठी, देयर वाज अ सिविल वॉर इन येमेन, और येमेनी सरकार बोली कि हमें चाइनीज नहीं चाहिए, ब्रिटिश, फ्रेंच, American, German, Russian, कोई नहीं आ सकता to take out their nationals. We only trust the Indians. So the Indian military went in. We brought out about 5,000 foreign nationals and Indian nationals stuck in Yemen. 2015 जुलाई की बात है. उसी साल मैं फ्रांस गया था. मैं फ्रांस में पढ़ा हुआ हूँ. The fellow at the airport, Charles de Gaulle airport, 28-30 साल का young French officer, मुझे देखता है पासपोर्ट मेरा, कहता है पासपोर्ट देख के, डिप्लोमेटिक एम्बेसडर ऑफ इंडिया. आई सेड यस. ही सेड सर थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग 300 फ्रेंचमैन आउट ऑफ येमेन. मैंने कहा भाई गलती हो गई तो वापस भेज देते हैं. वो भी मुस्कुराया, मैं भी मुस्कुराया. खड़ा होके मुझे सल्यूट करके कहता है थैंक यू इंडिया. अरे ये कौन सी दुनिया है जो फ्रांस हमें कह रहा है थैंक यू इंडिया. 2015 में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है. मालूम है ना आपको डॉक्टर जवाहर सूर्यसेठी, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कोर्स हमने रेजोल्यूशन रखा था. कैन यू हियर मी सर? कैन यू हियर मी डॉक्टर सूर्यसेठी? कैन यू हियर मी सर? वेरी क्लियर. थैंक यू. हमने 2015 में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का प्रस्ताव रखा था. 193 सदस्य हैं यूएन के. 177 को स्पॉन्सर्ड द रेजोल्यूशन, द लार्जेस्ट इन यूएन हिस्ट्री. और एक यूरोपियन एम्बेसडर की स्पीच हम सुन रहे थे, कहता है माय कंट्री सपोर्ट्स योगा बिकॉज इंडिया इज द स्पिरिचुअल मदर ऑफ ऑल मैनकाइंड. अरे जब हम लोग कहते हैं ना आपके लीडर्स की भारत विश्व गुरु है, विश्वास करो. ये मैंने नहीं कहा, गोरा कहता है इंडिया इज द स्पिरिचुअल मदर ऑफ ऑल मैनकाइंड. जॉर्जिया में जब आपका राजदूत था, वहां के बुद्धिजीवी ने कहा कि एवरी सिटीजन ऑन दिस प्लैनेट हैज 2 मदरलैंड्स, जहां पे उसका जन्म हुआ, और दूसरा भारत. Look at the respect that your country has. आप कभी न्यूयॉर्क जाइए, डॉक्टर सूर्यसेठी, go to the UN headquarters. उसके ऊपर महात्मा गांधी सोलर पार्क है with 193 solar panels, one for each country. वो UN बिल्डिंग को वो सोलर पैनल्स ऊर्जा दे रहे हैं. और वो किसने बनाया था? It was a gift from your country, India. 1969, ये कहानी आपको और सुनाता हूं. 1969 में डॉक्टर सूर्यसेठी, हैव यू हर्ड, डॉक्टर रुंगटा, हैव यू हर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, OIC? OIC, yes. उनकी स्थापना हुई थी इन मोरक्को इन 1969. वी वर इनवाइटेड. जब हम वहां पहुंचे, उन्होंने कहा सॉरी हमसे गलती हो गई, आपको अंदर नहीं जाने देंगे. तो बेइज्जत करके हमें बाहर निकाल दिया गया. वी डिडंट हैव द स्ट्रेंथ सर. 50 साल बाद, पिछले साल, when they celebrated their 50th founding anniversary, कौन था गेस्ट ऑफ ऑनर? भारत को बुलाया. भारत की ताकत वो आप समझते हैं. पाकिस्तान का विदेश मंत्री बोला अगर भारत आएगा तो मैं नहीं आऊंगा. उससे कहा थैंक यू वेरी मच, आपकी जरूरत नहीं है. दिस इज द OIC. टेक अ लुक एट दिस. दिस इज अ ट्रू स्टोरी सर. कैन यू सी दिस स्लाइड? द इंडियन स्पिरिट. क्या हुआ था कारगिल की लड़ाई? ये बिहारी छोकरा
डॉक्टर सूर्य सेठी बिहारी छोकरा 22-23 साल का फौज में भर्ती होने गया। लोगों ने उससे कहा कि बेटा आप फौज में कैसी भर्ती होगे, आपकी तो दोनों टांगे घुटनों के नीचे कटी हुई हैं। ही वाज लेम इन बोथ लेग्स, ट्रेन एक्सीडेंट में उसकी टांगे कट गई थी। जवाब क्या देता है? कहता है साहिबान मैं दुश्मन से लड़ने आया हूं, दुश्मन से भागने नहीं। लुक एट द स्पिरिट ऑफ इंडिया। ये है भारत की असली ताकत। एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं कि ग्रोइंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, देखिए कानून से ऊपर कोई नहीं है। जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड टूटी थी ना 2012 में, तो सारी दुनिया के अखबारों ने कहा बड़े आईटी सुपर पावर हैं ये, तो देखो जरा क्या इन्होंने कर दिया, बिजली भी वापस नहीं ला पाते, आधा भारत बिजली के बिना था। लेकिन किसी ने यही कहा कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में बिजली हम वापस ले आए, बिकॉज वी हैव द वर्ल्ड्स बेस्ट टेक्नोलॉजी, वी कॉल इट जुगाड़। और जब नेपाल में अर्थक्वेक आया था, आजकल तो नेपाल हमें आंखें दिखाता है, उनका बेवकूफ प्राइम मिनिस्टर, 2015 में जब भूकंप आया था, योर रिलीफ ऑपरेशन सन्स एंड डॉटर्स ऑफ इंडिया बिगैन इन 15 मिनट्स, और 6 घंटे के अंदर आपके जहाज वहां पहुंच गए थे। सुशील कोइराला जो उस समय प्रधानमंत्री था कहता है नेपाल इज ब्लेस्ड टू हैव अ नेबर लाइक इंडिया। कानून के शिकंजे से कौन बचा? एक तो भाग गया इंडस्ट्रियलिस्ट, दूसरा कोई जेल में है, 2 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स जेल में है, बड़े बड़े महारथी इंडस्ट्रियलिस्ट, रियल एस्टेट डेवलपर्स, पॉलिटिशियंस, ज्वेलर्स, सब बैंकर्स, ये सब कानून के सामने अब आ गए हैं। एक तस्वीर आपको और दिखाता हूं सर, आप साउंड नहीं सुन पाओगे, डजंट मैटर। ये इंडियन अर्थक्वेक था सिक्किम का सर 2011 में, याद है आपको डॉक्टर सूर्य सेठी? Yes, सड़क yes. थी 300 landslides, the road from Gangtok, which is the capital of Sikkim, to Siliguri in West Bengal. 300 जगह से टूट गई थी, पहाड़ टूटा, सड़क टूटी और चली गई। We asked the Austrians, they are the best. I know this, I took this photograph, मैं दूरदर्शन टीम के साथ वहां गया था सिक्किम में, to see what relief efforts were being taken. I took my television team. क्या हुआ था इसमें सर? We asked the Austrians, the best in the world, कितना समय लगाओगे? वो बोले कम से कम 6 हफ्ते लगेंगे। And then we asked the border roads. Prime Minister बोले border roads, Indian organization, उनसे पूछो कितना समय लगाएंगे। ये मैं जानता हूँ, वहां मौजूद था। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड से बात हुई, he says, let us do an assessment, we'll come back to you. 6 हफ्ते ऑस्ट्रियंस बोले थे। 20 घंटे के बाद डायरेक्टर जनरल साहब का फोन आता है, सड़क खुल चुकी है। ताकत देखते हो? और इस बच्चे को देख रहे हो जो यहाँ खड़ा हुआ था? We look at the way he's balanced. We lost 15-20 kids like him. एक बच्चे के घर में गया था, who had just passed away. I met his mother. I said to her that I'm extremely sorry माँ, बहन मैं आपके घर आया हूँ जब आपका बच्चा शहीद हुआ. This boy was about 23-24. Not this kid, another kid. Like, I feel very bad. Of course, government of India will give you compensation. Sikkim government, army, border roads. मैंने अपनी तरफ से एक चेक लिखा, मैंने कहा बहन जो मुझे दूरदर्शन से पैसे मिले हैं वो मैं आपको सब दे रहा हूँ. फिर मैंने उससे पूछा माँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बोली मेरा एक छोटा बेटा है. आई रिमेंबर दिस कॉन्वर्सेशन डिस्टिंक्टली. 9 साल पहले की बात है. बोली मेरा एक छोटा बेटा है, 20 साल का भी, ग्रेजुएट किया, उसको नौकरी दिलवा दो. ऐसे टू हर जब मैं दिल्ली वापस पहुंचूंगा, मेरे बहुत दोस्त हैं लाइक द रुंगटास हु आर बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, मैं उनसे बोलूंगा इस बच्चे को नौकरी दे दो. मैंने बोलती है भाई साहब आपको प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं बोला, मेरा बड़ा बच्चा शहीद हुआ है भारत के लिए. छोटे बच्चे को नौकरी दिलवाओ बॉर्डर रोड्स में ताकि मौका पड़ने पर वो भी शहीद हो जाए भारत के लिए. मैं क्या करता? I held her hands in mine and I said, माँ तुझे सलाम. And if I'm born again in India, मैं तेरी जैसी माँ की कोख से जन्म लेना चाहता हूँ. You know, that moment, Dr. Surya Sethi, मुझे ये बात समझ आई कि वो भारत भाग्य विधाता है और हम उसके सिपाही हैं. और फिर एक बचपन से मुझे सवाल सताता था, why are we Indians? मुझे फिर जवाब मिला, we are not Indians because we live in India. We are Indians because India lives in us. That Sikkimese mother gave me the answer to my question. एक स्लाइड और है about our humiliation. बेटा आप सब लोगों को ये बता देता हूँ. 65, 66, 67, we fought a war. अकाल पड़ा था, ड्राउट, करेंसी डिवैल्यूएशन, एग्रीकल्चर कोलैप्स. हमने भीख मांगी थी 90 और 1 करोड़ 10 लाख टन अनाज फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, द लार्जेस्ट इंपोर्ट्स इन ह्यूमन हिस्ट्री. आजकल एक अंग्रेजी की कहावत है ना डॉक्टर सूर्य सेठी, यू आर लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ.
उस समय हम कहते थे we were living from ship to mouth. एक अमेरिकन अखबार लिखता है about Mrs. Indira Gandhi, new Indian leader comes begging. I worked with her. You don't say things like this about that self-respecting women. और क्या क्या उस समय नारा था देश में, आप लोग तो सब छोटे हैं, I don't even know if anybody, maybe senior Mr. Rungta will remember. नारा ये था कि सोमवार को आपको अन्न नहीं खाना. Sons and daughters of India, आप नहीं जानते क्या है, because today we are the second largest producer of food in the world. But in 1966, एक साल मैं भूखा सोया हूँ on Mondays, every Monday for 1 year, because we wanted to save food. मैंने भूख देखी है. Not that my father couldn't afford it, but he said, बेटा, we are Indians, let's do it. 1991 में आपको याद है डॉक्टर सूरी सेठी, I had less than $1 billion of foreign exchange. हमने अपने दोस्तों से कहा, स्विस से, ब्रिटिश से, भाई हमें कुछ उधार दे दो, हमारी फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो रही है. बिलियन में 9 जीरो होते हैं 2 हफ्ते की इंपोर्ट के लिए. वो बोले वी डोंट ट्रस्ट योर इकोनॉमी. हमने 150 टन अपना सोना गिरवी रखा उनके पास. यू थिंक वी वर नॉट ह्यूमिलिएटेड एट दैट टाइम? और आज आपका देश भारत सिटिंग ऑन $500 billion वर्थ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. सो नेवर 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 अगेन. जो देश अपना अतीत पास्ट भूल जाता है उसका भविष्य नहीं है. यू नो, फॉर टू लॉन्ग दूसरों ने आपकी किस्मत लिखी है. We remember our past. We made mistakes. Never, never, never again. Now, Dr. Suri Sethi, all the children watching this show, make a commitment. अब हम अपना भविष्य लिखेंगे ताकि कोई दूसरा ना लिख सके. मैं अपने कान को हाथ लगाता हूं, भगवान से माफी मांगता हूं, to say that we will determine our destiny. The people of India, the children of India will write India's destiny so that nobody else can write it for us. As an Indian, have faith and confidence in yourselves. अरे जो निराशावाद है, don't allow that to affect you. To be born Indian is a lottery of birth. चाणक्य ने कहा था बहुत साल पहले, नाम सुना है आपने कौटिल्य चाणक्य का. उसने कहा था अगर जंग में डर आपके सामने आ रहा है, सबसे पहले डर को हराओ और फिर आगे बढ़ो. और आजकल तो वो स्लोगन है, डर से आगे बढ़ो क्योंकि डर के आगे जीत है. किसी ने उस फरिश्ते से, उस महात्मा से पूछा था, बापू मैं दुनिया कैसे बदलूं? उसने कहा अपने आप. Be the change you want to see. एक बार लिसोथो के प्राइम मिनिस्टर, जिनका मैं विशेष सलाहकार हूं, उन्होंने मजाक में मुझसे कहा, कोई बात हुई थी, मैंने जवाब दिया एक सवाल का, मुझसे कहने लगे, एम्बेसडर दीपक, are you God? I said, no sir, I'm an Indian. That's next best thing. ताली बजा के कहने लगे, that's why I have you as my special advisor. You know, we can do it. We are Indians. Every second we are lifting one Indian out of extreme poverty. Every 2 seconds we build a toilet under Swachh Bharat. Every second Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, we open 2 bank accounts. हर 15 मिनट हम 1 किलोमीटर हाईवे बना रहे हैं. बेटा आपका देश गरीब देश है ना, रूस की पर कैपिटा हमसे 5 गुना ज्यादा है, लेकिन सितंबर पिछले साल 2019 में there was a conference for the development of Russia's eastern province व्लादिवोस्टॉक में. आपके प्रधानमंत्री खड़े होकर कहते हैं रूस को, आपने हमारा साथ दिया है, आज आप पे अमेरिकन यूरोपियन सैंक्शंस है, हम आपको 7,000 करोड़ रुपए का उधार दे रहे हैं. Your poor country giving a loan to Russia. अरे विदेशी जो वेस्टर्न मीडिया वो नहीं लिखेगा, वो ये मान नहीं सकते कि इंडिया इज गिविंग अ लोन. We did. 2015 में हमने कहा था कि हम 20 गीगावाट सोलर एनर्जी हम पैदा कर देंगे 7 साल में. गीगावाट में 1 बिलियन वॉट्स होते हैं. 20 गीगावाट 7 साल में. दुनिया हंसी. मुझसे टीवी वालों ने पूछा आप कभी नहीं कर पाओगे. जानते हैं हमने 3 साल के अंदर कर दिया, 4 years ahead of schedule. फिर उन्हीं टीवी वालों से मैंने कहा कि मैं कुछ साउंड बाइट मुझसे चाहिए, बोले हमारा कैमरा रिकॉर्डर जो है वो बीमार है. हैप्पी बर्थडे. For the first time in history, sons and daughters of India, this convergence is taking place. 1/4 of your population school में है, college में है. 1/4. Enthusiastic, tech savvy, अरे कुछ भी कर देंगे. 2/3 of your population productive age group. Fastest elimination of poverty in India, 1 second, 1.2 second. Explosion of self-confidence and self-esteem. Determination कि हम अपना भविष्य खुद लिखेंगे. और आपके पास है डिसाइसिव लीडरशिप. पहली बार मानव इतिहास में ये 5 उंगलियां, लद्दाख में तो फिंगर्स की बात करी है, 5 उंगलियां इकट्ठे होके एक मुक्का बन चुकी हैं. दिस इज हैपनिंग. आई सी इट इन इंडिया. सो हु कैन स्टॉप इंडियाज राइज एंड राइज? कोई नहीं रोक सकता. योर रेनेसांस
is underway. Bharat ki eternal wisdom, असम ने जो पारावेदी गड़िया लागू जैसा उधार शारी जाना वासुदेव कुटुंबकन, जो कहते हैं ये तेरा है ये मेरा है, उनके दिमाग चीनियों की तरह बहुत छोटे हैं। भारत के ऋषि मुनि कहते थे सारी दुनिया एक परिवार है। This is what it is. We are the brave men and women who work while others sleep. We stay while others run. We build India's pillars deep and lift them to the sun. India is incredible. At 73, we are in puberty. Our hormones are growing wild. आप बच्चे जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, we are churning, we are chafing, we are changing. अरे 73 साल में आप चाहते हो और मांगो जो आपको चाहिए, because we've seen the essential goodwill that you have for your country. स्वामी विवेकानंद ने 125 साल पहले कहा था, future India will be much greater than ancient India, because भारत जाग रहा है। और आप में से जो लोग पिछले 35 मिनट से सो रहे थे, आपसे एक अनुरोध है कि आप भी जाग जाइएगा, क्योंकि अब नॉन स्टॉप इंडिया है। और जो सैफरॉन रंग है ना, दैट रिफ्लेक्ट्स करेज एंड स्ट्रेंथ। ये भारत की कहानी है। बिलीव मी, वी आर द बेस्ट, द अदर्स आर द रेस्ट। और आपने मुझे ये वादा किया है कि यू विल बिल्ड द न्यू इंडिया। मैं आपसे ये वादा करता हूं। This is my tombstone in Kargil. Dr. Suri Sethi, I'll take you there. You can see it. जब बड़े साहब ने देखा, उनकी आंखों में पानी आया, बोले कि इतना प्यार करते हो देश से। मैंने कहा सर, एक ही तो देश है। Scattered in the dust, silent I remain when India's bugle calls. I promise I will rise again. Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen. It has been a delightful experience. Sorry about this Chinese interference in our system, but I've enjoyed talking to you. Thank you very much. So, sir, सभी का खून खोल रहा होगा अभी। अरे मजा आया कि नहीं? नहीं, वो तो उनसे पूछ लूंगा मैं बाद में, लेकिन खून तो मेरा खोल रहा है। खून तो मैं खोल रहा है मेरा भी। That I'm in India. Sir, the question, the first question, we'll take a few questions. The first question is that given the current scenario in Ladakh, where the Chinese want to get in, the question somebody has asked is, you worked with many prime ministers. Do you think the current leadership, क्या आज का जो नेतृत्व है वो इससे डील करने में सक्षम है? Deal करने में, to deal with the issue. Yeah. Okay, let me answer your question indirectly. आप भारत के इतिहास में देखेंगे, हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं, भले ही पृथ्वीराज चौहान हुआ और शाह पोरस, पुलकेशिन II इन साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, छत्रपति शिवाजी, राणा प्रताप, ये घोड़ों पे हाथियों पे चढ़ के खुद लड़ते थे। महाभारत देखिएगा, पांडव कौरव खुद लीड करते थे। पाकिस्तान की तरह अपने एनसीओस जेसीओस को नहीं भेजते थे आगे लड़ने के लिए। द इंडियन आर्मी सर, the casualty ratio officers to men in conflict situation, we have the highest because we lead from the front. अरे आपके कर्नल बाबू को क्या जाने की जरूरत थी वहां पर? किसी को भेज सकता था। And the Chinese sent some of their soldiers. They, of course, we got their colonel also, but they sent their soldiers. We lead from the front. तो ये जो आपका प्रधानमंत्री चीफ एग्जीक्यूटिव ले जाता है ना, लद्दाख जाता है, ये दिखाना चाहता है कि I am leading from the front, जो मनोबल ऊंचा हुआ है। Let me tell you, लोग कहते हैं कि आप चीन का कैसे मुकाबला करेंगे, आपकी तो केवल 15 लाख की सेना है। सॉरी माय ब्रदर्स, आज मेरी 130 करोड़ की सेना है। एवरी इंडियन इज अ सोल्जर टुडे। द प्राइम मिनिस्टर हैज शोड दिस। लुक, आई हैव बीन टू लद्दाख मेनी टाइम्स। आई एम अ स्पेशल एडवाइजर। पहले तो मैं दवाई खाता हूं एक रात जाने से पहले, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, ताकि मुझे उसका कुछ पे असर ना हो। उसके बाद 24 घंटे वो मुझे हिलने नहीं देते। दे टेल मी कि सो जाइए, आराम करिए, गेट यूज्ड टू इट। I see this man who's, I'm 69, he's probably the same age. I see this fellow get off the helicopter and like a teenager, he's running to talk to the officers and men of the Indian Army and the women. He goes to the hospital, he goes here, he goes there. I mean, what keeps him going? ये क्या जुनून है? ये जुनून आपकी decisive leadership का है. So take it from me, sir. We are dealing with this. Remember, we have fought wars constantly, most recently in 1999. चीन ने 1979 पे वियतनाम में हमला किया था 41 साल पहले। उसके बाद कहीं नहीं लड़ा। वो साइकोलॉजिकल प्रेशर डालता है, मैं बड़ा शक्तिशाली हूं, अरे आजा तेरे को दिखा देंगे। यू नो, टेक इट फ्रॉम मी, sometimes when I'm in Kargil and Leh, I have to restrain my young soldiers, my officers, particularly on the Pakistan border. मुझे कई बार वो कहते हैं, सर आप तो विशेष सलाहकार हैं, आदेश दो ना,
कराची घूम के आते हैं. They say it light-heartedly, and I too light-heartedly say कि साथ में मैं इस्तीफा भी दे देता हूँ before I give you this permission. बहुत मजा आता है. Look at the janoon. You know, may I say something? This is from Babington, Lord Macaulay's thing about Horatio Cocles, the Roman chap who with 5 soldiers was guarding a bridge against the Etruscans. We've done it all the time. How can man die better than facing fearfully for the ashes of his fathers in the temples of his God? There's only one temple, sons and daughters, that we worship at. That temple is called India. Okay, fantastic. So, sir, the second one is that seeing the current geopolitical scenario, do you think China stands isolated with छुटपुट कुछ चीटियां हैं कि मे बी पाकिस्तान है उसके साथ, ऐसे कुछ चीटियां होंगी? अब तो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी बोल दिया भाई उस न्याजी साहब को कि पीछे हट जाओ, चीन से सारी दुनिया हंस रही है. I mean, it's you know, they stand so totally isolated. China, look, I'm not going to share any secrets. You will understand that. You keep information. But let me say, European Union ने क्या बोला है? एक तो पाकिस्तान की फ्लाइट्स बैन कर दी है क्योंकि उनके पायलट्स के लाइसेंसेस, द मेजॉरिटी हैड फर्जी, लाइक घर में बैठा बैठा कंप्यूटर पे उसने फ्लाइंग लाइसेंस बनवा लिया टू फ्लाई अ प्लेन, राइट? दैट इज द लेवल ऑफ इंटेग्रिटी इन दैट कंट्री. दूसरी चीज, यूरोपियन यूनियन ने चाइना से कहा जो तो हांगकांग में कर रहा है वो गलत है. यू प्रॉमिस देम डेमोक्रेसी टिल 2047, 27 साल पहले तूने खत्म कर दिया. They've been nibbling away. और जब साउथ चाइना सी में आसियान ने स्टेटमेंट दिया है कि चाइना you better behave yourself because you can't go on doing this. Philippines 3-4 years ago had a problem with China over this Scarborough Shoal. छोटा सा एक टापू है, तो चाइना और फिलीपींस दोनों बोले चलिए लेट्स गो टू द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जो यूएन की एक संस्था है. पहुंच गए, उन्होंने सब दोनों साइड्स को सुना एंड दे रूल्ड इन फेवर ऑफ द फिलीपींस. They gave a judgment in favor of the Philippines. तो चाइनीज कहते हैं अच्छा ये कौन सी संस्था है जी, हमने तो नाम ही नहीं सुना, फाड़ के जजमेंट देख दिया, हम वो करेंगे जो हमें करना चाहिए. अरे देखो तुम्हें जो झापड़ अब पड़ने वाला है ना, यू आर टोटली आइसोलेटेड. अभी WHO की भी डेलीगेशन जाने वाली है और उनका भी जो डायरेक्टर जनरल है, जो भी उसका नाम है, दैट इथियोपियन फेलो, वो तो बिल्कुल चमचा है चाइनीज का. लेट अस सी इफ द ट्रूथ कम्स आउट. चाइना वाज रेजिस्टिंग getting a team to come and find out virus कहां से शुरू हुआ है. They are now succumbing to it. China understands it's completely isolated. और अब ताइवान पे प्रेशर डालने की कोशिश करेगा. जब इंटरनल प्रॉब्लम्स चाइना में हुई हैं 62 में, माओज दैट ग्रेट लीप फॉरवर्ड फ्लॉप्ड, 5 करोड़ चाइनीज मर गए. उसके बाद उसकी कल्चरल रेवोल्यूशन में 2 करोड़ और मर गए. तो जब ग्रेट लीप ठप हुआ, हम पे हमला किया. जब उसकी कल्चरल रेवोल्यूशन फ्लॉप हुई तो उसने हमला किया रूस के ऊपर 69 में. फिर जब वो गैंग ऑफ 4 ने डेंग जाओपिंग को बिल्कुल आउट कर दिया था, द ओनली वे ही कुड कम बैक वाज डाइवर्टिंग इंटरनल अटेंशन, तो वियतनाम पे हमला किया. और फिर सन 2000 में जब चाइना पे प्रेशर पड़ने लगा कि यू आर रियली मिसट्रीटिंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ताइवान स्ट्रेट्स में शुरू कर दिया. ही बिकम्स अग्रेसिव. He becomes aggressive when he has domestic problem. और मैं सुहानी आपको आज कर देता. I'm not supposed to do predictions. Let me do it. By the end of this year, this Xi Jinping, जो भी है, Xi Jinping, let me tell you that he would either have retired on health grounds, or you will hear very little. Second prediction that I'm making, there will be an eruption of democratic movements. Million mutinies that go on every day, जिनके बारे आप पढ़ते नहीं हैं, वो शुरू हो जाएंगी. और तीसरी चीज मैं आपको बता देता हूं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना टूट जाएगी. हम लोग चाइना का देखिए किस तरह से कहते हैं हमारी फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, सारी दुनिया बड़ी खुश, ओ बहुत बड़ी चीज. और भाई तूने इतने कैमरा क्यों लगा रखे हैं फॉर द वीगर्स एंड अदर्स? तू डरता किससे? अपनी परछाई से? Are you scared of people that you want to first identify where they are going, what they are doing? फिर उनके मन में भी घुसना चाहता है? मैं तो नहीं ये चाहता. अमेरिका में yes, for security reasons they have surveillance, but the Supreme Court has said you can only do it when there's a national emergency, not every day. I mean, facial recognition technology तो मैं भी बना सकता हूँ भाई. I'm the best in the world, but I'm a democratic system. ये डरते किससे हैं? अपनी परछाई से डरते हैं. And let me assure you, sir, इंटरनेशनल आइसोलेशन अपार्ट, सिर्फ 1-to-1 में मैं उसके ऐसे दांत तोड़ूंगा कि कोई डेंटिस्ट उनको ठीक नहीं कर पाएगा. आई प्रॉमिस यू दिस ऑन बिहाफ ऑफ द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ इंडिया. आई कम फ्रॉम अ फैमिली दैट वोर यूनिफॉर्म. 62 में आई लॉस्ट फैमिली
in the India-China war. मैं जानता हूँ दुख क्या होता है और अब उसको सिखा क्यों नहीं बताता वो उसके कितने लोग मरे हैं. The latest figure we have is 63. Yes. और वही चीज पाकिस्तान ने की थी in 1999. जी मेरे तो मुजाहिद है. और फिर जो उनके सोल्जर्स थे जब उनकी फैमिलीज कहने लगी कि हमारे बच्चे कहाँ हैं तो बड़ी रिलक अच्छा वो मर गया होगा. ये देश है where you can't tell the truth to your own sons and about your own sons and daughters to their parents. अरे झूठ की हद होती है. समझो इसको. आप बड़े संजू की बात करते हैं आर्ट ऑफ वॉर. वी कैन विन अ वॉर विदाउट फाइटिंग एंड थ्रू डिसेप्शन. चाणक्य तो बहुत पहले कह गया था कि यू कैन विन अ वॉर बाय शोइंग देम योर स्ट्रेंथ. वी डोंट बिलीव इन डिसेप्शन. भिड़ना है तो अखाड़े में आ जा. ये पीछे से वार क्या करने की बात है. ये तेरा चरित्र है. ये आपकी सभ्यता है मेरी नहीं. Sorry sir, I get carried away with it. Okay, sir, last question. What is the reason for the volte-face by Nepal? By one person. One person, yes. Yes, that KP Sharma Oli. Yeah. We all know he's sold out to China. There's no question. We know what assets he has over there. But the people of Nepal, and he's frightened. He's terribly frightened. He thinks that China will come to its defense. After the Chinese poured into Korea during the Korean War in the 50s, China has never gone to anybody's defense. वो वियतनाम वॉर में भी कहते रहे लड़ो लड़ो हम तुम्हारे हथियार देते थे लेकिन अपने सिपाही नहीं भेजते थे. They are a useless army. Yes. They were very scared of sending their people to fight in Vietnam. वो हथियार देंगे पैसा देंगे लड़ेंगे नहीं. अरे पाकिस्तानियों समझ जाओ. If you think they are going to come and help you, they didn't come in 71 जब आपका देश टूटा था. They didn't come in 1999. Even though the Americans in 71, Kissinger told the Chinese, यार कुछ तो दबाव डालो इंडिया पे. बोले हाँ हम रेडियो ब्रॉडकास्ट करेंगे. I mean it's this kind of thing. You know, understand that Nepal today it's one man and he is in deep trouble. Give him another 2 or 3 weeks. अरे ऐसा ढीठ है कि वो अब he should resign. By the way, I heard something very interesting, Dr. Suriseti. I'm not going to confirm or deny. He rang up the Chinese जो उनके प्रतिनिधि है वहाँ कि I'm in deep trouble. The ambassador was trying to get the different factions of the Nepal Communist Party together. It's a communist government that came to power through the democratic process. तो उसने फोन किया तो उनके सेक्रेटरी ने बोला आप कौन है. बोले प्राइम मिनिस्टर. कहाँ की प्राइम मिनिस्टर. नेपाल. अच्छा नेपाल वो ब्राजील के पास है ना कहीं. अच्छा आप बात करना चाहते हैं. I don't confirm or deny this. I'm only telling you that this is China's habit. और पाकिस्तान भी ये समझ है वो किसी के सगे नहीं है. वो अपने सगे नहीं है. माओ ने कितने अपने साथियों को मार दिया. ये जो है ना Xi Jinping, by the way, during the Cultural Revolution, his father, who was a Communist Party official, was one of those who was told कि you are anti-revolutionary. तो मीटिंग्स होती थी. ये Xi Jinping ने अपने बाप के अगेंस्ट स्पीचेस दिए हैं. अरे क्या सभ्यता है तुम्हारी. What great civilization is this, where the son is forced to abuse his father. ये सब सबक उसने सीखे. So he's now concentrating all power, but he will be history. जितने बड़े बड़े tyrants थे in history, वो सब हिटलर भी आया, मुसोलिनी भी आया, माओ भी आया, बड़े नेपोलियन भी आए, बहुत सारे लोग आए थे. ये सब चलेगा. Sir, thank you very much. It was a pleasure talking to you. And Vande Mataram, the students would have benefited a lot and identify with you more than us grey-haired people, and they require you more than us. So may I make a suggestion that in a few weeks, whenever you have the time, let's have one session exclusively on Kashmir. I think people need to know the truth about Kashmir. We'll do that. क्या जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, गोरखास को वहां जाने दे रहे हैं, पीओके के बारे में कह रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. एक चीज आप लोग सोच लीजिएगा, रिसर्च कर लीजिएगा. बिफोर आई लीव यू सर 1 minute only. There's a UN resolution on Kashmir. जो पाकिस्तान उसकी बात करता था, अब नहीं बात कर. जानते हैं क्यों? यार हमारे दिमाग से पंगा मत लो. हमने कहा है कि जब अगर सौरभ रुंगटा और मेरा यहाँ दवार सूरीसेट्टी और मेरा एक प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट है, हम कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट स्टे ऑर्डर दे दे. कहता है ना आप हाथ लगाओ ना आप हाथ लगाओ. करेक्ट सर? UN resolution is a stay order. ना तुम कुछ करो ना मैं कुछ. भारत नहीं करेगा, पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा. तो भाई साहब, आपने जो चाइना को सीड कर दिया है, आपने शख्सगाम वैली उनको दे दिए, आपने जो ऑक्यूपाई कर रखा है उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश, सड़क बना रहे हो. Why aren't you violating the UN resolution? जब हम ये कहते हैं तो कहते हैं अजी बड़ी नींद आ रही है, हमको सोने जा रहे हैं. अरे किससे
पंगा ले रहे हो चाणक्य की संतान से, दिखा देंगे तुम्हें. That's all that I wanted to say. Thank you, sir. Thank you so much. See you again on the Kashmir thing. Again, we'll see you. Whenever you're ready. Vande Mataram, sir. Vande Mataram.